Assalamu alaikum class. Okay, so in today's lecture, we will be writing answers to the questions on page number 124 and 125 of your book, particularly of your exercise of chapter 9, electricity. So, first MCQ is choose the correct answer. An electric current in a metal wire in a circuit is a flow of electrons. I'm sharing a screen with you where I'll be writing answers to the questions and you need to mark those answers. For questions, you need to open your neat notebooks and write the answers on it. I'll be writing in this board and you'll be writing on your neat notebooks. But for MCQs, filling the blanks, please do it on your book. Okay? Okay. So, MCQs. First MCQ is an electric current in a metal wire in a circuit is a flow of, its option is D. It is flow of electrons. Okay, let me enable chat and then you can share your answers here. ओके आप जो है अपने आंसर जो है वो चैट बॉक्स में भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं साथ साथ और साथ साथ मैं बोली जाऊंगी सब बच्चे अपनी जो है वो बुक्स पे ये मार्क करेंगे जो अभी मैं करवा रही हूँ टू मेजर द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल component we use its option is B, an ammeter in series. We always use ammeter to measure the current because ammeter is the device that measures the current and we always place that device in series, not in parallel. But in case of voltmeter, please note that point. It is not in your book that we attach the voltmeter always in parallel. But in case of ammeter, we attach it in series. Okay, and I hope you understand it that ammeter is device that is used to measure current and voltmeter is used to measure voltage. So we connect the ammeter in series, but we connect voltmeter in parallel. But now the question is that how to measure current, not voltage. So current is measured using ammeter, not voltmeter. So correct option is B, an ammeter in series. Okay, now let's move to the third MCQ. A switch turns a circuit on or off by making it, the definition of switch that it makes the circuit complete or incomplete. So its option is C, complete or incomplete. Okay. Come to MCQ number 4. What type of circuit is found in the given arrangement? You all can see on your books that you are given the diagram of fairy lights, and you better know that fairy lights is the type of series circuit. So its option is B, series circuit. Okay, last MCQ. Which one of the following is an insulator? Knife blade. Knife blade is made up of some kind of metal to make it sharp. And you know that metal is conductor. Silver spoon always also a conductor. And cooking foil is just like a metal thing. And plastic, you know that plastic is an insulator. So its option is plastic ruler. Okay. Move to the filling the blanks. Electrons are not able to flow through. अभी हमने एमसीक्यू भी पढ़ा इंसुलेटर से इलेक्ट्रॉन पास नहीं करेंगे वो मेटल का नहीं होता ठीक है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एबल टू फ्लो थ्रू इंसुलेटर
Okay, then adding more bulbs in a dash circuit reduces the flow of current, because we know that in series circuit we do not have a separate path for every bulb. So if we attach more and more bulb in the same lane, their brightness will decrease. That's why adding more bulb in series circuit reduces the flow of current, not in parallel. Okay, but keep that point in mind that in series circuit the current is constant. Okay, so current is same everywhere. That doesn't mean that current cannot be reduced. ठीक है, करंट कम हो सकता है बट इट विल बी सेम फॉर एवरी बल्ब. अगर कम हो रहा है तो पूरी लाइन में ही कम होगा. ओके, करंट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स अक्रॉस द सर्किट, बट व्हेन वी add more and more bulb, their brightness will decrease because now the flow of current is reduced. So its answer is series. Okay, next is the current flow through the circuit if the dash is in on position. You know that for on and on off we use, um for what device we use on and off term? Switch. Okay, switch is used to on and off circuit. Next is if one bulb is removed from the dash, there is still a complete circuit. It is parallel. In the previous class we have studied it in details. Okay, नेक्स्ट अब हमने सर्किट डायग्राम पे आना है. किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक हो, यू कैन रेज योर हैंड. माहिदा सतवत, माहिदा पूछ लें. टीचर ये जो एमसीक्यू नंबर 2 है मुझे इसका नहीं समझ आ रहा। एमसीक्यू नंबर 2 का मैंने आपको बताया था कि जो सीरीज सर्किट है ना उसमें करंट सेम होगा, लेकिन हर एक जो बल्ब, क्योंकि एक ही लाइन में हमने अटैच करना है ना, वो एज अ रेजिस्टर एक्ट करेगा. रेजिस्टेंस का मैंने आपको बताया था, जो एक किस्म की ब्लॉकेज होती है करंट के रास्ते में, जो करंट को कम कर देती है. तो हर एक बल्ब जो ऐड होगा ना वो एक किस्म के ब्लॉकेज के तौर पर एक्ट करेगा. ठीक है, तो जिसकी वजह से करंट कम होता जाएगा. ठीक है, अगर हम ज्यादा से ज्यादा बल्ब अटैच करें, इस वजह से हमारे पास जो है वो अब ये करंट एक स्पेसिफिक बल्ब के लिए नहीं कम होगा बल्कि सबके लिए कम होगा. ठीक है, करंट हर पॉइंट पे सेम रहेगा, लेकिन सर्किट में फ्लो जो है ना करंट का, करंट की मूवमेंट, फ्लो का क्या मतलब है? मूवमेंट. जो उसकी मूवमेंट है ना वो स्लो हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट की बात है, करंट की बात नहीं है. ठीक है, तो फ्लो ऑफ करंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, करंट इजीली पास नहीं कर पाएगा. ठीक है, महक. टीचर ये जो आपने फर्स्ट वाली ब्लैंक करवाई है तब मैं नहीं थी तो ये बता दें इसमें क्या था। फर्स्ट वाली ये इलेक्ट्रॉन्स है. जब आपको पता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है सर्किट में, वो करंट किसको कहते हैं? जो मैंने आपको पहले जो लेक्चर आपको रिवाइज कराया था तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है या इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं. न्यूट्रॉन्स को कहेंगे, एटम्स को, या वोल्ट्स को? कोई और ऑप्शन है इसमें? आपको क्या बेटर लग रहा है? इलेक्ट्रॉन। जी, आगे समझ. अच्छा, नेक्स्ट आपका जो है ना, ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाना है. तो सर्किट बनाई, मैं आपको बना के दिखाती हूँ. आपने बैटरी की जगह इस तरह से आप लोगों ने बैटरी बना देनी है.
देखिए पॉजिटिव जो है वो बड़े वाला पॉजिटिव है, वो हमारे पास लेफ्ट साइड पर है, तो लेफ्ट साइड पे आपने पॉजिटिव लगाना है। यहाँ पे नेगेटिव, ये आपकी बैटरी हो जाएगी। बैटरी के साथ इधर जो है हमारे पास स्विच है। इसमें ऑन ऑफ लिख दें। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने बल्ब अटैच कर देना है। तो यहाँ से आपने दोबारा वायर, यही चीजें इसके अंदर, तीन ही चीजें थी, एक बल्ब था, एक आपके पास बैटरी और स्विच। ठीक है, इस तरह से आपने बना देना है। उन्होंने आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दिया, आपने ड्रॉ करना है सर्किट, सर्किट डायग्राम। ठीक है उससे। ओके, नेक्स्ट पर आ जाए, ये सब ने कर लिया आई होप। नेक्स्ट पर अरेंज द फॉलोइंग सर्किट अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके ये आपको दिखा देती हूँ। पहला जो है हमारे पास वो इस तरह से है। इसमें दो बल्ब अटैच है। ठीक है। यहाँ पे स्विच है। नेक्स्ट बैटरी। ओके, ये एक है हमारे पास। नेक्स्ट वाला कुछ इस तरह से है कि उसमें हमारे पास दो बल्ब अटैच हैं, लेकिन उसमें दो सेल हैं। ठीक है, ऐसे। और थर्ड वाला कुछ इस तरह से है, हमारे पास तीन बल्ब अटैच हैं। रुबीना, आप अपने काइंडली जो है पॉइंटर बार बार इधर ना लेके आए, आई कैन सी यू। फिर इसके साथ जो है एक ही सेल अटैच है। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो इस केस में अगर आप देखें, फर्स्ट वाले केस में तो दो इधर हैं हमारे पास बल्ब, और इधर भी दो ही बल्ब हैं। आपको पता है कि इस सीरीज में अगर मैं ज्यादा बल्ब अटैच करूंगी तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें कम बल्ब है, पहले हम कम बल्ब की तरफ जाते हैं। इसमें दो बल्ब हैं और इसमें भी दो हैं, लेकिन इसमें दो सैलेट मीन्स कि ये सबसे ज्यादा ब्राइट करेगा। ठीक है। तो आप इसके ऊपर क्या लिख दें, वन। ठीक है, इसके ऊपर वन लिख दें। उसके बाद ये दो बल्ब है और इसके पास एक ही बैटरी, और ये तीन बल्ब है, तो इसकी कम होगी, ये सेकंड नंबर पे आएगा और ये थर्ड नंबर पे। सबसे ज्यादा इसकी ब्राइटनेस होगी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो वन टू थ्री अगर हम लिखें तो वन इसके ऊपर लिखेंगे, इसके ऊपर हम टू लिखेंगे और इसके ऊपर थ्री। ठीक है, समझ आ गई है? ओके, नेक्स्ट आप आ जाएं क्वेश्चंस पे। व्हाट इज सर्किट। मैं अब आपको आंसर लिखवाना शुरू करती हूँ। ओपन योर नीट नोटबुक्स और सब बच्चों ने लिखना शुरू कर देना। कल आपका टेस्ट होगा। ओके, कल आपका टेस्ट होगा, नीट नोटबुक्स पे लूंगी, क्लास के अंदर ही लूंगी, और मैं यहीं पे लिखूंगी जिससे आप व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, और आप लोगों ने लिखना है। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिखना शुरू करती हूँ, आपने ये अब अपनी नीट नोटबुक्स पे लिखना है। व्हाट इज अ सर्किट। द पाथवे ट्रेवल्ड
by electrical energy is called an इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सेल और बैटरी इन अ सर्किट। क्लास, आपको पता है कि हमारे पास जो सर्किट होता है, इट इज द पाथवे ट्रेवल्ड और द पाथ ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली हमारे पास एनर्जी जो हमारे पास आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन से आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी से आती है, ठीक है, एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो ऐसा पाथवे जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है ट्रैवल करने के लिए, उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। सर्किट जो है वो उसको एक रास्ता प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मूव कर रही होती है, वो ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ अ सेल और बैटरी है सर्किट के अंदर। सेल और बैटरी एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। A chemical reaction inside the battery pushes electrons out of the negative terminal and round to the positive terminal। आई होप कि आप सबको ये नजर आ रही है ना स्क्रीन। सब बच्चे लिख रहे हैं ना? अपने जरा हैंड रेस करके मुझे बताएं कि सब बच्चे साथ साथ लिख रहे हैं। ओके, गुड। 12 बच्चों ने हैंड रेस किए हैं, इट मीन्स के बाकी जो 5-6 बच्चे हैं वो क्लास में सो रहे हैं। ऐसा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फंक्शन ऑफ अ सेल और बैटरी क्या है हमारे पास। सेल और बैटरी हमारे पास क्या होती है कि हम बेसिकली ये प्रोवाइड कर रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो सेल और बैटरी प्रोवाइड करती है, और ये एनर्जी हमें चाहिए होती है। कोई भी हमने बल्ब अटैच किया है या कोई भी अप्लायंस हमने अटैच किया है, इट नीड्स दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ग्लो, ठीक है, बल्ब को। तो सेल और बैटरी एक्ट एज अ सोर्स, वो सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जहां से आती है, और इसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर हुई होती है। और उस केमिकल एनर्जी की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है बैटरी के अंदर, उस रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात थी, दैट्स व्हाई वी have written that electrons out of negative and round to positive terminal, okay? The next question is, how do you make a circuit diagram? How do you make a circuit diagram? Okay. Each component of a circuit is represented by a symbol. आपको पता है हर एक जो पार्ट होता है, कंपोनेंट का क्या मतलब है, पार्ट, ठीक है। एवरी पार्ट भी आप लिख सकते हैं, एवरी पार्ट ऑफ सर्किट इज represented बाय अ सिंबल या शोन बाय अ सिंबल, जो वर्ड आपके लिए बेटर लगे, ठीक है। हर एक जो पार्ट होता है सर्किट का उसे हम सिंबल से शो करते हैं, और वायर्स कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कनेक्टिंग वायर्स आर यूजुअली शोन एज स्ट्रेट लाइंस। ओके, वायर्स को हम स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। And when
दे मीट एट जंक्शन, कहते हैं जोड़ को, जहां पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं ना, उसको कहते हैं जंक्शन। दे आर ओफन बट नॉट ऑलवेज। अपने हैंड रेज नीचे कर लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर हैंड रेज करें। जॉइंड एट राइट एंगल्स। ओके। हर एक जो हमारे पास कंपोनेंट होता है ना सर्किट का, उसको हम सिंबल से शो करते हैं, वायर्स को हम जो है स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। और जैसे एक वायर दूसरे वायर के साथ मीट करती है किसी जंक्शन पे, किसी ऐसे पॉइंट पे जहां दो वायर मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे वो मीट करती हैं जंक्शन पे, तो वो ज्वाइन होती है राइट एंगल पे। हमने देखा जिस तरह हम सर्किट बनाते हैं तो बिल्कुल राइट एंगल में बनाती हूँ ना। मैंने आपको वो दिखाया था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे, ओके, लेट मी शेयर। जब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब मैं सर्किट बनाया, तो जब ये एक वायर थी, ये दूसरी वायर थी, जब ये मीटअप किए तो ये राइट एंगल बन रहा है ना यहाँ पे 90 का। तो आपने भी जब सर्किट डायग्राम बनानी है तो यहाँ पर राइट एंगल ही बनाना है। ठीक है, कोई बल्ब अटैच करना है, कुछ भी, आपकी स्ट्रेट लाइन हो, राइट एंगल बनता हो दो वायर्स के कनेक्ट करने में। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। तो ये वाला पॉइंट जहां पे दो वायर मीट कर रही हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं, जंक्शन है। ये एक जंक्शन है, ये दूसरा जंक्शन है, दिस इज द थर्ड जंक्शन। इसी तरह से जंक्शन आते हैं। ओके, बैक टू व्हाट वी आर राइटिंग। ओके, नेक्स्ट, आगे हमारे पास उसके बाद क्या है कि लॉन्गर जो होगी, बैटरी की बात कर लें तो लॉन्गर लाइन ऑन द बैटरी shows the positive terminal and the shorter line shows the negative टर्मिनल। हमने देखा बैटरी जब हम ड्रॉ कर रहे थे, उसमें एक हम लंबी लाइन लगा रहे थे, एक छोटी, एंड यू नो दैट द लॉन्गर लाइन इज पॉजिटिव, उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और शॉर्टर लाइन को नेगेटिव टर्मिनल। और इन टर्मिनल्स को हम क्या कहते हैं, दीज टर्मिनल्स कहाँ पर होते हैं, आर वेयर द वायर्स आर कनेक्टेड। और दोनों शॉर्टर और लॉन्गर टर्मिनल के साथ हम दोनों साइड से क्या कनेक्ट कर देते हैं, वायर्स। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाता है, सर्किट डायग्राम बन जाती है। और हर एक कंपोनेंट्स को हम, हर एक जो कंपोनेंट है या पार्ट है, कंपोनेंट का क्या मतलब है, पार्ट, हर एक जो पार्ट है ना हमारे पास सर्किट का, ठीक है, उसको हम सिंबल से शो करते हैं। अब इसमें मैंने सारे ही पार्ट्स की बात कर दी, जब मैंने पार्ट का कहा, आपको पता है डिफरेंट सिंबल है, आप दूसरी भी चीजें इसमें बता सकते हो अगर डिटेल्ड आपने लिखना है, और कि वो आपसे पूछे हर किसी का सिंबल्स भी बताएं, आप बता सकते हो। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि क्लोज स्विच का, हम आप लोग क्लोज स्विच लिखेंगे, फिर उसके आगे ब्रैकेट में साथ सिंबल लिख देंगे कि इसको represented by this symbol, y represented by this symbol, psi represented by this symbol, सिंबल बना बना के। ठीक है, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, हर किसी का आप सिंबल लिख सकते हैं। ओके, जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है ना, कनेक्टिंग वायर्स आर यूजुअली शोन एज स्ट्रेट लाइंस। इस तरह ब्रैकेट में अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, इस तरह मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, इससे तो नहीं ड्रॉ हो रही, ठीक है, इस तरह मैं ड्रॉ कर दूं, ठीक है। इस तरह से आप हर एक का सिंबल बता सकते हैं। ठीक है, बैटरी का ब्रैकेट में हर किसी का, हर किसी के लिए ऐसे ही आप लोग यूज कर लेंगे, वायर्स आर यूजुअली शोन एज स्ट्रेट लाइन। फिर आप कह सकते हैं बल्ब आर शोन एज, यू नो, बल्ब किस तरह से शो होते हैं, कि इसका मैं करवा ही देती हूँ आपको थोड़ा सा, बल्ब का बता देती हूँ किस तरह से लिखेंगे। कल आपका इस वाले चैप्टर का टेस्ट होगा। लाइट बल्ब,
shown as a circle with an X inside। ठीक है, इस तरह बता सकते हैं। उसके बाद स्विच का आप कह सकते हैं स्विच usually shown as two dots with the hinged line। जो लाइन उसके दरमियान में होती है ना, उसको हिंज्ड लाइन कहते हैं। दैट कैन ओपन। हिंज्ड क्यों कह रहे हैं? जिस तरह डोर का हिंज नहीं होता, उसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं, इस तरह से उसको हमने हिंज कहा है, क्लोज द पाथ। क्योंकि ये ओपन और क्लोज हो सकती है ये लाइन। ये स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि हिंज्ड लाइन है जो ओपन और क्लोज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नेम द डिवाइस, नेम द डिवाइस used to measure करंट। ये आपकी डिवाइस है गोस्ट फेज 3। हु इज गोस्ट फेज 3? आप काइंडली लाइन ना ड्रैग करें, आप अपना नेम बता दें पहले तो। गोस्ट, देर इज नो गोस्ट इन दिस क्लास, ओके। कोई गोस्ट अगर है तो बता दें, मैं उनको रिमूव करूं। नेम द डिवाइस यूज टू मेजर करंट, एमीटर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। करंट का यूनिट आपको पता है क्या है? एम्पेयर। जो डू यू नो वाला आपका वो एक था ना कॉन्सेप्ट, उसके अंदर लिखा था, मैंने मार्क भी कराया था कि एमसीक्यू वगैरह में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए। व्हाट इज स्विच? जो गोस्ट बच्चा है ना, वो अपना जरा नेम भी लिख दें ताकि हमें पता लग जाए अटेंडेंस के दौरान। ओके, a device that is used to open or close a circuit is called a switch, and it controls the flow of electricity in a circuit। ओके, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सब हो गए हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेलल एंड सीरीज सर्किट। ओके, ओके, एक मिनट, ये पीछे हो गया है, उड़ गया क्वेश्चन। नाउ इट differentiate between parallel and series circuit। series circuit, parallel circuit। आपका जो थिंक अबाउट इट है ना, ये आपके एक्सक्लूडेड टॉपिक में से है, तो ये वाला नहीं हम करेंगे, ठीक है। components like bulbs are in a single
ठीक है। और इसमें क्या है, ईच component like bulb has its own separate path connecting to the power source. ओके। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इसका मतलब कि एक इसके पास पाथ होता है ट्रैवल करने के लिए, और इसमें क्या है कि इसमें एक से ज्यादा पाथ होते हैं ट्रैवल करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ वन बल्ब breaks the circuit, okay, if one bulb break, the all other bulbs turn off। और इसके अंदर लिखें, if one bulb breaks, the others remain on। नेक्स्ट ब्राइटनेस की बात कर लें, bulbs get dimmer as you add more to the circuit। नेक्स्ट, bulbs stay टीचर आप एक bright मिनट ऊपर कर सकती हैं, कोई क्वेश्चन रह गया। no matter how many you add। अभी जो लिख रहे हैं वो लिखें, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। आपने साथ साथ लिखना था ना, मैं भी आपके साथ साथ ही लिख रही हूँ। ओके। नेक्स्ट, बल्ब जो है आपको पता है, जैसे ही बल्ब ऐड करेंगे तो बल्ब जो है डिम होते जाएंगे, और इसमें जो है वो ब्राइट ही रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, करंट और वोल्टेज की बात कर लेते हैं। करंट is same at all points in the circuit। Current is not same at all points in the circuit। वोल्टेज की बात कर लेते हैं, 8 पॉइंट वोल्टेज वाला हमारा रह गया। वोल्टेज is shared amongst components। कंपोनेंट्स की जगह आप बल्ब भी लिख सकते हो, ठीक है। और पैरेलल में क्या होगा, ऑल कंपोनेंट्स गेट फुल वोल्टेज। लास्ट हम एग्जाम्पल के एक एग्जाम्पल ऐड कर लेते हैं। एग्जाम्पल, फेरी लाइट्स। और इसमें एग्जाम्पल है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, बस इसके बाद मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। इसमें एग्जाम्पल है, हाउस होल्ड लाइट्स, फैंस,